सती प्रथा बनाम यूरोप का स्त्रीधन अभियान। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा नैतिक छल। यह लेख सोम मिशा के द्वारा लिखा गया है। यूरोप जब चुड़ैल शिकार अभियानों में अपनी हजारों स्त्रियों को जला रहा था, तब ब्रिटिश शासन भारत में घटित अत्यंत विरल और कई बार स्वैच्छिक सती को practice as proof of Indian barbarism. This stark hypocrisy allowed imperial powers to pose as saviors while ignoring their own history of misogynistic violence. While Europe burned tens of thousands of its own women at the stake for witchcraft, British imperial moralists pointed across the ocean at a handful of Hindu widows stepping voluntarily onto funeral pyres and thundered, "Behold the savage!" History's most breathtaking act of projection had found its stage. Sati, the act of a widow self-immolating on her husband's funeral pyre, was an exceedingly rare phenomenon in pre-colonial and colonial India, documented in only a few hundred cases across vast populations and centuries. Historians like Anant Sachdevalkar have estimated that, even at its peak in medieval times, only an infinitesimal number of widows in the general population were immolating themselves, adding that in the Deccan and central India, not more than one widow in 1,000 used to mount the funeral pyre. British records, which were highly exaggerated to further their colonizing and missionary agendas, from 1815 to 1828 tallied 8,134 widow immolations in Bengal, an average of 581 per year amid an estimated 1 million widows, a figure so minuscule it borders on statistical insignificance. In stark opposition, Europe's witch hunts between the 15th and 18th centuries unleashed a torrent of institutionalized violence, executing up to 60,000 individuals, predominantly women, under the guise of purging demonic influences. Three of these persecutions, fueled by religious fervor and social paranoia, ravaged communities across Germany, France, Scotland, and beyond, with Germany alone accounting for up to 25,000 deaths. While colonial powers decried sati as a symbol of Eastern barbarism to justify their civilizing mission, their own societies were still extinguishing the embers of similar atrocities, revealing a profound hypocrisy in the moral narratives of empire. This disparity is not merely numerical, but emblematic of how history is wielded as a tool of power. Sati, often voluntary and generally confined to elite strata, was exaggerated by British missionaries and administrators into a pervasive horror to legitimize colonial rule. In contrast, the witch hunts represented a systematic, state-sanctioned campaign against women, often targeting healers, midwives, and the marginalized amid economic upheavals following the Black Death and the Reformation. Colonial construction of sati. Myth and manipulation, the portrayal of sati as a rampant scourge in Hindu society was not an organic revelation, but a deliberate construct of British colonial ideology. Following the पुथल के बीच सती औपनिवेशिक कल्पना की गढ़ी हुई महामारी। हिंदू समाज में सती को एक व्यापक सामाजिक अभिशाप के रूप में प्रस्तुत करना किसी स्वाभाविक ऐतिहासिक निष्कर्ष का परिणाम नहीं था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक विचारधारा की एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण निर्मिति थी। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ होने लगी, ब्रिटिश प्रशासकों के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे अपने आर्थिक शोषण को किस प्रकार नैतिक आवरण प्रदान करें। इसी संदर्भ में ईसाई मिशनरी, जिन्हें 1813 के चार्टर एक्ट तक भारत में स्वतंत्र रूप से Battle of Plassey in 1757, which marked the ascendancy of the East India Company, administrators sought moral pretexts to cloak their economic exploitation. Christian missionaries, restricted from proselytizing until the Charter Act of 1813, bombarded the British Parliament with sensationalized accounts of Hindu atrocities to gain entry into India. Sati emerged as their quintessential emblem of Oriental depravity, inflated from isolated incidents into an epidemic that demanded Western intervention. Historian Lata Mani, in her seminal work Contentious Traditions, The Debate on Sati in Colonial India, argues that the discourse surrounding sati was less about the welfare of Indian women and more about redefining Hindu tradition to suit colonial agendas.
Missionaries like William Carey propagated wildly inflated figures, claiming 10,000 to 100,000 annual cases, to galvanize support for evangelical efforts. Yet, these claims crumbled under scrutiny. Comprehensive analyses of epigraphic and historical record from 1900 BCE to 1900 CE reveal fewer than 500 documented instances of sati in South India, roughly one every 8 years over the millennia. Even in Bengal, where sati was relatively more common due to socioeconomic factors like land inheritance laws under the Permanent Settlement of 1793, the practice affected a negligible portion of widows. This exaggeration served multifaceted purposes. Economically, it diverted attention from colonial policies that precipitated famines, such as the Bengal famine of 1770, which claimed up to 10 million lives. Culturally, it positioned Britain as the enlightened arbiter, echoing Rudyard Kipling's white man's burden while erasing indigenous identity. This narrative persists in modern discourse, equating colonialism with progress and overshadowing the economic drain, estimated at $45 trillion by economist Yusuf Patnaik, that impoverished India. The irony is palpable. While Britain lamented a phantom epidemic of sati, its own history was marred by the very real pyres of which persecutions, which claimed lives on a scale sati never approached. Historical evidence and regional variations to demystify the prevalence of sati. One must delve into its historical footprint, which reveals a practice far from ubiquitous. Ancient accounts, such as those by the Greek traveler Megasthenes in the 4th century BCE, mention only isolated cases among Indian elites. Dutch observer Francisco Pelsaert, writing during the reign of Mughal Emperor Jahangir, remarked that there are hundreds or even thousands who do not do it. Italian nobleman Pietro della Valle, who traveled through India in the 1630s, likewise noted that the burning of widows upon their husbands' deaths was optional and that indeed few practice it. Francois Martin of the French East India Company, who lived in India from 1669 until his death in 1706, similarly observed that the custom was not very widely practiced now. Author Meenakshi Jain points out that even officials of the East India Company maintained, well into the late 18th century, that sati was not a common practice. In 1770, Alexander Dow asserted that it had almost disappeared and was not reckoned a religious duty, as has been very erroneously supposed in the West. George Forster wrote in 1782 that many Hindu widows, particularly in the Maratha regions, held significant power and influence through their abilities, wealth, connections, or political involvement. Eliza Fay, the wife of a judge of the Supreme Court in Calcutta, wrote in September 1781 that she had never had an opportunity of witnessing the various incidental ceremonies, nor have I ever seen any European who had been present at. दीर्घायु, उत्तरदायित्व और गृहस्थ धर्म के पालन को ही प्रधानता दी गई है। बाद के स्मृति ग्रंथों में विविध दृष्टिकोण मिलते हैं। मनुस्मृति 5.157-158 संयमी विधवा जीवन की प्रशंसा अवश्य करती है, पर स्पष्ट करती है कि संतान पालन मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य स्मृति आत्मसंयम, तप और व्रतशीलता का उपदेश देती है, अग्नि प्रवेश का नहीं। कुछ पुराणों, विशेषतः गरुड़ पुराण, में स्वैच्छिक सहगमन का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे आध्यात्मिक पुनर्मिलन का मार्ग बताया गया है, पर यह भी तभी मान्य है जब उसमें कोई बल, दबाव या प्रलोभन न हो। मेधातिथि जैसे आचार्यों ने बलपूर्वक कराए गए सहगमन की खुलकर निंदा की है और इसे धर्म के प्रतिकूल घोषित किया है। पराशर स्मृति 4.28-30 के जिन श्लोकों को अक्सर समर्थन साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है, वे भी विद्वानों के अनुसार बाद के राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक विघटन की पृष्ठभूमि में जोड़ी गई प्रक्षेपणाएं हैं, न कि मूल वैदिक विचारधारा का अंग। भारत के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं में स्वामी विवेकानंद ने सती को एक सामाजिक परंपरा का विकृत रूप कहा, न कि हिंदू धर्म की अंतर्निहित या अनिवार्य संस्था। अर्थशास्त्र में भी बलपूर्वक सहगमन के किसी दंड का उल्लेख नहीं मिलता,
जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रथा यदि कहीं थी भी तो केवल स्वेच्छा पर आधारित थी। सारांश रूप में शास्त्र सती को पातिव्रत्य की चरम अभिव्यक्ति अवश्य मानते हैं, पर इसे गृहस्थ धर्म, मातृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व से नीचे रखते हैं। किसी भी प्रकार का बलपूर्वक आत्मदाह शास्त्रीय दृष्टि से अवैध और अधार्मिक है। महाभारत युग में माद्री का आत्मदाह महाभारत में सती का एक महत्वपूर्ण और आरंभिक साहित्यिक उदाहरण रानी माद्री का प्रसंग है, जो यह दर्शाता है कि प्रथा का मूल भाव यदि कहीं था भी तो वह सामाजिक बाध्यता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं और स्वाधीन निर्णय से प्रेरित होता था। आदि पर्व अनुच्छेद 117 के अनुसार माद्री, जो पांडु की दूसरी पत्नी और दैवी वर से उत्पन्न नकुल सहदेव की माता थीं, पांडु की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर चढ़ जाती हैं। पांडु वनवास में थे और शाप के कारण सहवास वर्जित था। माद्री की सुंदरता और आकर्षण से उनका संयम भंग हुआ और इसी कारण उन्हें मृत्यु का वरण करना पड़ा। मृत्यु का कारण स्वयं को मानकर माद्री अपराध बोध से व्याकुल हो उठती हैं। वे कहती हैं, राजा की मृत्यु का उत्तरदायित्व मुझ पर है, उनके बिना जीवन असंभव है। कुंती और आश्रमवासी ऋषियों द्वारा मातृत्व को प्रधानता देने की अनेक विनतियों के बावजूद माद्री का संकल्प अडिग रहता है, मेरा हृदय राजा के साथ है, मैं उनकी चिता की सहचर बनूं। माद्री का यह निर्णय सती को एक गहन मानवीय संदर्भ देता है, जहां न सामाजिक दबाव है न पितृसत्तात्मक बाध्यता, केवल प्रेम और शोक का स्वाधीन निर्णय। इसके विपरीत कुंती आत्मदाह से इनकार करती हैं और पांचों पांडवों का पालन पोषण स्वयं करती हैं, जो मातृधर्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। महाभारत के मूल पाठ में अनेक विधवाएं जैसे सत्यवती जीवित, सक्रिय और प्रभावशाली रूप में उपस्थित हैं। यह दर्शाता है कि सती कोई स्थापित सामाजिक नियम नहीं था। राजा राममोहन राय सुधारक या औपनिवेशिक टट्टू। सती विरोधी अभियान के आधुनिक स्वरूप का समापन 1829 में बंगाल सती विनियमन के रूप में हुआ, जिसने सती में सहायता को दंडनीय अपराध घोषित किया। राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1811 में अपनी भाभी की सती का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था, ने अपने पत्र संवाद कौमुदी में वैदिक तर्कों से सिद्ध किया कि सती का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ उनके सहयोग ने औपनिवेशिक सरकार को इसे सामाजिक विकृति घोषित करने का अवसर दिया और विधायी प्रतिबंध का मार्ग प्रशस्त किया। फिर भी राय की विरासत सरल नहीं है। कुछ विद्वान, विशेषकर राजीव मल्होत्रा, उन्हें ब्राउन साहब की उपाधि देते हैं, इस आधार पर कि उनकी शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी और ब्रह्मो समाज की एकेश्वरवादी प्रवृत्तियां मिशनरी भाषणों से निकटता रखती थीं। एवेंजेलिकल समूहों के साथ उनका सहयोग अनजाने में उस औपनिवेशिक कथा को बल देता गया जिसमें भारत को एक अंधकारमय अनैतिक समाज के रूप में चित्रित किया जाता था, जबकि यूरोप के अपने चुड़ैल हत्याओं के इतिहास को सहजता से अनदेखा कर दिया गया था। सतीनिषेध के बाद बेंटिक ने इसे सभ्य बनाने की विजय कहा, मानो सुधार का नैतिक श्रेय ब्रिटिश शासन को ही प्राप्त हो। इससे भारतीय पहल और आंतरिक सुधार परंपरा का महत्व कमतर आका गया। राय की सोच निस्संदेह हिंदू समाज के नैतिक पुनरुत्थान की दिशा में थी, पर उनकी पश्चिमोन्मुखी शिक्षा और तर्कशीलता ने उन्हें अंग्रेजीकरण के एक सेतु के रूप में भी स्थापित कर दिया, जिस पर आगे चलकर विद्यासागर जैसे सुधारकों ने काम किया। इस प्रकार यह सुधार आंदोलन अपने नैतिक उद्देश्य के बावजूद औपनिवेशिक श्रेष्ठता के नैरेटिव को और गहरा करने का माध्यम बन गया, जहां स्वदेशी आवाजें अनजाने में विदेशी हस्तक्षेप को वैधता प्रदान करती दिखाई दी। यूरोप में चिताएं, भारत में उपदेश। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी भारत में सती की निंदा करते हुए उसे असभ्यता का प्रतीक घोषित कर रहे थे और अंतः प्रतिबंधित करने का विधान बना रहे थे, उसी कालखंड में ईसाई यूरोप का एक विशाल भूभाग स्वयं जादूटोना के आरोपों पर आधारित क्रूर सामूहिक हिंसा के दौर से गुजर रहा था।
इतिहासकार इस युग को प्रायः बर्निंग टाइम्स 1450 से 1750 अर्थात दाहन काल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस समय पूरे महाद्वीप में आरोपित चुड़ैलों को आग में झोंक देना एक संस्थागत प्रथा बन चुकी थी। यूरोप में लगभग 60,000 लोगों, जिनमें लगभग 80% महिलाएं थीं, को जादूटोना के आरोपों में मृत्युदंड दिया गया। 1486 में प्रकाशित कुख्यात मैलियस मेलिफिकारम हैमर ऑफ विचेज ने इस स्त्री विरोधी उन्माद को न केवल धार्मिक बल्कि विधिक स्वीकृति प्रदान कर दी। इस ग्रंथ में महिलाओं को उनकी कथित नैतिक दुर्बलता, कामुक प्रकृति और मानसिक अस्थिरता के कारण शैतानी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बताया गया, जिससे संपूर्ण यूरोपीय समाज में स्त्री घृणा और भय की एक विध्वंसक लहर उत्पन्न हुई। सबसे भीषण उत्पीड़न रोमन साम्राज्य के जर्मन भाषी क्षेत्रों में हुआ, जहां लगभग 25,000 हत्याएं दर्ज हैं। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और लो कंट्रीज भी इस हिंसा के प्रमुख केंद्र रहे, विशेषकर 1580 से 1662 के मध्य, जब संदेह और उन्माद की आंधी ने संपूर्ण समाजों को तहस-नहस कर दिया। यूरोप महाद्वीप और स्कॉटलैंड में दोषी ठहराई गई महिलाओं को अक्सर जीवित जला दिया जाता था। यह दंड नरक की शाश्वत अग्नि की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति माना जाता था, तथा यह विश्वास भी था कि जलाकर मारने से शरीर पुनः जीवित नहीं हो सकेगा। इंग्लैंड और उसकी उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों में यद्यपि प्रथा कुछ भिन्न थी और प्रायः फांसी दी जाती थी, परंतु परिणाम उतने ही घातक थे। यह दौर उस समय की धार्मिक मानसिकता और सामाजिक आशंकाओं का दर्पण था। फसलें नष्ट होना, पशुओं का मरना, शिशु मृत्यु, रोग, दुर्भाग्य, इन सभी को शैतान और उसके मानव सहयोगियों की करतूत समझा जाता था। सुधार आंदोलन के बाद धार्मिक एकरूपता को सुरक्षित रखने का उन्माद इतना प्रबल था कि शैतान से संधि न केवल धर्मद्रोह बल्कि राष्ट्रविरोधी कृत्य भी माना जाता था। लौकिक और आध्यात्मिक अदालतें कठोर दंड संहिताओं से सुसज्जित थीं, जो स्वीकारोक्ति के लिए पीड़न का सहारा लेती थीं, और इस प्रकार आरोप, भय और हिंसा का एक अविरल चक्र निर्मित होता था। लोक कथाओं में चित्रित मस्सेदार, कर्कश हंसी वाली बूढ़ी चुड़ैल के विपरीत जादूटोना के आरोप झेलने वाली अधिकांश महिलाएं सामान्य ग्रामीण थीं, हकीम, दाइया, निर्धन विधवाएं, या वे स्त्रियां जो किसी सामाजिक असहमति के कारण समुदाय की बेचैनी का आसान निशाना बन जाती थीं। कभी कभी पड़ोसियों से विवाद होने जैसी साधारण घटनाएं जीवन मरण का प्रश्न बन जाती थीं। अनेक क्षेत्रों में एक अकेला आरोप भारी संख्या में गिरफ्तारियों, सामूहिक सुनवाइयों और फांसी की श्रृंखलाओं में बदल सकता था। यह हिंसा और आतंक उस औपनिवेशिक आलोचना से कहीं अधिक व्यापक और क्रूर था जिसे ब्रिटेन ने बाद में सती के संदर्भ में भारतीय समाज पर आरोपित किया। इंग्लैंड में भी जादूटोना के आरोपों में दहन की प्रथा 18वीं शताब्दी तक बनी रही। पेटी ट्रीजन लघु राजद्रोह के लिए अंतिम दहन 1789 में न्यूगेट जेल में कैथरीन मर्फी का हुआ, जिन्हें पहले गला घोंटा गया और फिर नकली सिक्के गढ़ने के अपराध में जला दिया गया। इसी घटना ने 1790 के ट्रीजन एक्ट को जन्म दिया, जिसने जलाकर मारने के दंड को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर फांसी का प्रावधान किया। इससे पूर्व की प्रसिद्ध मिसालों में जोन ऑफ आर्क 1431 और एलिजाबेथ गॉन्ट 1685 उल्लेखनीय हैं। ज्ञानोदय काल एज ऑफ एनलाइटनमेंट की शुरुआत के बावजूद यूरोप में यह हिंसा लंबे समय तक जारी रही। वे शासक जो भारतीय महिलाओं को सती से बचाने का दावा करते थे, अपनी ही सभ्यता में घटित स्त्री नरसंहार की विशाल विरासत को सुविधाजनक ढंग से भुला देते थे। अमेरिका में सेलम की भयावह विरासत 1692 में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में हुए सेलम विच ट्रायल्स इस यूरोपीय उन्माद का ही एक रूप थे। घटनाक्रम तब प्रारंभ हुआ जब कुछ युवा लड़कियां, जिनमें से कुछ मात्र 9 वर्ष की थीं, भूत प्रेत के दृश्य देखने का दावा करने लगीं। इन पीड़ित बालिकाओं ने अनेक महिलाओं और पुरुषों पर जादूटोना के आरोप लगाए।
अदालत में उनका रोकर आरोप लगाना अक्सर इतना प्रभावी होता कि निर्दोष लोगों को तुरंत दोषी मान लिया जाता। अंततः 14 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित 19 अभियुक्तों को गैलोस हिल पर फांसी दे दी गई। एक व्यक्ति जाइल्स कोरी ने अदालत की प्रक्रिया का विरोध करते हुए दलील देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे पत्थरों से दबाकर मार डाला गया। इंग्लैंड की परंपरा के अनुकूल किसी को जलाया नहीं गया, परंतु दंड उतने ही घातक और भयावह थे। सेलम घटनाक्रम में बच्चों की गवाही को असामान्य महत्व प्राप्त था। 17वीं शताब्दी की यूरोपीय मानसिकता में बच्चों को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध माना जाता था और यह मान लिया गया था कि वे दुष्ट शक्तियों को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। इस विचार ने बच्चों को चुड़ैल शोधक की भूमिका का अनपेक्षित अधिकार दे दिया था। अंग्रेजी लोक कथाविद क्रिस्टिना हॉल अपनी पुस्तक अ मिरर ऑफ विचक्राफ्ट में लिखती हैं कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अनेक गांवों में बच्चों का उपयोग चुड़ैलों को पहचानने के साधन के रूप में किया जाता था। कुछ बच्चे केवल उंगली उठाने या मिर्गी सदृश दौरा पड़ने भर से दोषारोपण का आधार बन जाते थे और स्थानीय ख्याति प्राप्त कर लेते थे। सेलम कोई विचित्र अपवाद नहीं था, यह एक अटलांटिक पार सामाजिक मानस का प्रतिबिंब था, जिसमें बालावाजे, वयस्कों का भय और धार्मिक सिद्धांत मिलकर निर्दोष लोगों के विनाश का कारण बनते थे। ये देर से उठी प्रतिध्वनियां ब्रिटेन के सती विरोधी अभियानों के साथ समानांतर रूप में उपस्थित थीं और इस प्रकार औपनिवेशिक सभ्य बनाने के दावों की गहरी विडंबना को प्रकट करती हैं। निष्कर्ष सती का निषेध निस्संदेह एक आवश्यक सामाजिक सुधार था, पर औपनिवेशिक शासन ने इसे अपने हितों की आड़ के रूप में प्रयोग किया। 1829 में बेंटिक के अधिनियम के समय ब्रिटिश नीतियों से उपजे विनाशकारी अकाल लाखों लोगों को निगल रहे थे, फिर भी प्रशासन ने नैतिक विमर्श को सती तक सीमित कर दिया। मिशनरियों और औपनिवेशिक अधिकारियों ने हिंदू समाज की कथित कुरीतियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जबकि उसी उत्साह से यूरोप की चुड़ैल हत्याओं और व्यापक स्त्री हिंसा की विरासत को अनदेखा करते रहे। इस दोहरे मापदंड ने वह औपनिवेशिक कथा गढ़ी जिसमें भारत को पिछड़ा और पश्चिम को नैतिक उद्धारक के रूप में दिखाया गया। वास्तव में साम्राज्य का उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि प्रभुत्व था, जिसके लिए मिथकों, गलत व्याख्याओं और सांख्यिकीय अतिशयोक्ति का सुनियोजित उपयोग किया गया। यूरोप की जादूटोना आधारित हिंसा और सती पर उसके चयनात्मक आक्रोश के बीच का तीखा विरोधाभास यह स्पष्ट करता है कि औपनिवेशिक नैतिकता का लक्ष्य स्त्रियों की सुरक्षा नहीं, सत्ता की वैधता थी। एक अत्यंत विरल और अनेक मामलों में स्वैच्छिक प्रथा को सामूहिक बर्बरता में बदलकर ब्रिटेन ने अपने आधिपत्य को नैतिक आधार देने की कोशिश की और अपने ही समाज के स्त्री विरोधी इतिहास को धुंधला कर दिया। इस विरोधाभास को समझना सती का समर्थन नहीं बल्कि औपनिवेशिक मिथक निर्माण के उस ढांचे को चुनौती देना है जो आज भी वैश्विक चेतना को प्रभावित करता है।